Hello everyone, I'm Ishit Shah from Dolphin Academy. Let us start with the next chapter, chapter number 2, polynomials. So it's very easy chapter, but first you have to clear all your basic concepts. So this video mainly focused on basic concepts like identify the type of polynomial. Means it is a linear polynomial, quadratic or cubic polynomial, or a given question is a polynomial or not. वो भी आपको पता होना चाहिए. Second, the degree of the polynomial. Once you know the degree, then only you can find the type of the polynomial, linear, quadratic, cubic. Then coefficient of the term. How to find the value of polynomial at given points or given value of x. कोई x का वैल्यू दिया हुआ x equal to 2, find the value of polynomial. तो वो कैसे फाइंड करना है? This all the things you already learned in the previous class or previous standard. So just I'm revising all the concept and जिस स्टूडेंट का ये कच्चा रह गया है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो उसका थोड़ा परफेक्टली हो जाए, वो मेरा ट्राई है. नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ द फैक्टर्स फॉर अ गिवन पोलिनोमियल, और यू हैव टू एग्जामाइन द गिवन फैक्टर्स इज द गिवन वैल्यू इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट. एंड लास्ट, फैक्टराइजेशन. सो दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर पोलिनोमियल. In this chapter you can easily score the marks, but for that you have to learn this things, basic concept very properly and perfectly, then only you can score the marks. So let us start with the identify the type of polynomial, degree of polynomial and coefficient of the term. This 3 point I am considering one part. Identify the types of polynomial, degree of polynomial and coefficient of polynomial. So if you have one polynomial p of x is a polynomial in x. If you have p of y, so that is polynomial in y. So the highest power of x in p of x is called degree of the polynomial. That is called degree of the polynomial. So for example, p of x is equals to 4x plus 1. फर्स्ट मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ. p of x is equals to 2x square minus 3x plus 1. p of y equal to y square minus 2. Now check it here. The highest power of x is here, that is 1. So its degree is 1. Here highest power is 2. So its degree is 2. Here highest power is 2. That is polynomial in terms of y. That is polynomial in terms of y. तो आपको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर ऑफ y. जिसका पोलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज जैसे कि दिस इज p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें x का पावर देखना है. अगर आपको दिया हुआ है p ऑफ y दैट इज पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें y का पावर देखना है, दैट इज y स्क्वायर माइनस 2x. तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2. थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर p ऑफ t इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस √2. तो यहाँ पे क्या हो गया? डिग्री हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है? 3. सो योर डिग्री इज 3. क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. p ऑफ u लेते हैं. जैसे कि वो दिया हुआ है 7u रेज टू 6 माइनस 3/2u रेज टू 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8. तो इसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या है मेरा? 6. डिग्री इज 6. आपका इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, u/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5. सो हाईएस्ट पावर इज 2. सो इट्स डिग्री इज 2. तो ऐसे आप डिग्री फाइंड कर सकते हो. क्लियर? चलो अभी डिग्री फाइंड करना हो गया. सो आपको डिग्री समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. तो उसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड लिनियर पोलिनोमियल. जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1. दैट इज कॉल्ड लिनियर पोलिनोमियल. डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल. तो यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री 1. सो दैट इज योर linear polynomial. Degree 2, so that is your quadratic polynomial. Again degree 2, quadratic polynomial.
डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल. क्लियर. हमें डिग्री 6 वाले अभी नहीं करना है, 1 2 3 वाले. डिग्री 2 अगेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्लियर. ओके. So degree 1 that is linear, degree 2 that is quadratic, degree 3 that is cubic. बस इतना ही हमें समझ में आया अभी. 1 2 और 3 linear, quadratic and cubic. और ये हमारा चैप्टर है सिंपल पोलिनोमियल. तो हम उसमें अलग अलग टाइप के इसके एग्जांपल्स करेंगे. मोर जनरल वे में अगर मुझे बोलना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, चलो पहले मैं समझाता हूँ आपको. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो पहले हम कोफिशिएंट समझ लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आगे क्या है a. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a. अगर आपको दिया हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज b. अगर आपको दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा यहाँ पे -2, सो आंसर इज -2. कोफिशिएंट ऑफ x इज -2. क्लियर. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट करते हैं. ऐसा कुछ है 5x माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1, सो कोफिशिएंट इज -1. क्लियर. एक और 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं. दैट मीन्स 1, सो दैट इज 1. अगर ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी इसमें क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है यहाँ पर नहीं है, तो यू कैन राइट 0x स्क्वायर. सो इट्स कोएफिशिएंट इज 0. समझ में आ रहा है. अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट होता है 0. अगर कोई टर्म है बट उसके आगे कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1. अगर कोई टर्म मिसिंग है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर उसके आगे कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 with its sign. if it is -1, either it is -1 or +1. क्लियर. ऐसे आप उसका कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो. तो जनरली फॉर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स आपका a 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो आपका इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टर्म में हो गया. सो a इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1, b 0 होगा तो भी चलेगा. ऐसा भी हो सकता है ओनली 2x स्क्वायर, b और c दोनों 0 हो गया तो भी चलेगा. बट x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. आपका x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. x स्क्वायर का कोफिशिएंट देन इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स a इज 0 हो गया तो आपका कैसा बन जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 0 ले लूँ तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1. ये हो जाएगा, ये तो नहीं पॉसिबल है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0. तो अगर आपका ऐसा भी हो सकता है 3x ओनली माइनस 2x प्लस 1. तो ये आपका सारे हो गए लीनियर पोलिनोमियल. सो दैट इज योर लीनियर पोलिनोमियल. a इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0. मीन्स जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल. बिकॉज इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1. समझ में आ रहा है. अगर 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बोला है तो हाईएस्ट पावर मतलब ये तो 0 ही हो गया. तो निकाल के आपको हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आएगा 1. तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो रहा है जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा. नेक्स्ट ऐसा आप देखते हैं, अगर आपको इन जनरल दिया हुआ है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, सो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज क्यूबिक. इफ a इक्वल टू 0 तो ये टर्म निकल गया, अब बचा इतना ही. नाउ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज क्वाड्रेटिक. चलो अभी a भी 0 हो गया, b भी 0 है तो ये टर्म भी निकल जाएगा. तो सिर्फ इतना बचा.
सो सी एक्स प्लस डी दैट इज योर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज लिनियर. तो अभी कोई बोल रहा है चलो सी भी निकाल दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ डी, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, सो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे a, दैट इज 2, दैट नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, सो दैट इज cubic polynomial. But if it is 0, then it is 3x plus 1, so x is power 1, so it is linear polynomial. मीन्स आप सिंपल पावर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए ये एक एग्जांपल है. जिसको बेसिक एकदम थरो जानना है तो उसके लिए यूज हो सकता है. अदरवाइज यू कैन फाइंड बाय इट्स पावर. इफ पावर इज 1 then degree 1 linear, पावर 2 means degree 2 quadratic, पावर 3 हाईएस्ट पावर 3 डिग्री 3 क्यूबिक. बस इतना सिंपल याद रखो आपको. क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, लिनियर, और क्यूबिक किसको बोलते हैं, इतना आना चाहिए आपको एक बस सिंपल. और एक आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है. जैसे कोफिशिएंट उसके आगे का जो टर्म है उसको साइन के साथ लेना है. जैसे यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 0, तो आपको कोफिशिएंट याद रखना है. तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड उसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. मैं थोड़े और एग्जांपल देता हूँ. जैसे यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि √5 p ऑफ v, √5 v स्क्वायर माइनस 2/3 v. तो इसका क्या हो गया, डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, और ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया. क्लियर. और v का कोफिशिएंट चाहिए मुझे अगर, तो v का कोफिशिएंट क्या होगा, -2/3. क्लियर. कोफिशिएंट ऑफ v दैट इज -2/3. एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा. 4p ऑफ z इक्वल टू 4z स्क्वायर प्लस 1/7. चलो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2. कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक. एंड मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4z स्क्वायर, 2 के बाद क्या आता है 1, दैट इज 0z⁻1 प्लस 1/7. तो z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0. कोफिशिएंट ऑफ z इज 0. क्लियर. ये सारे बेसिक कंसेप्ट है, ये आने चाहिए आपको. नेक्स्ट एक कंसिडर करते हैं p ऑफ x इक्वल टू 2 - x³. चलो इसका डिग्री क्या हो गया, 3, -3 नहीं 3, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल. चलो अभी मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x³. x³ के आगे क्या है, -1. चलो सिमिलरली मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x². x² तो इसमें है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, 0. सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म है यहाँ पे नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0. तो इसको मैं लिखना है तो कैसे लिख सकते, 2 + 0x प्लस 0x² माइनस x³. क्लियर. तो x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट भी 0. क्लियर. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका पोलिनोमियल है 1/x-1, ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है, एक्सप्रेशन लाइक 1/x-1, एक्सप्रेशन लाइक 1/x-1, देन √x + 2, 1/x² + 2x + 3. तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते. सो दैट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स. ठीक है. रूट में आ रहा है तो पोलिनोमियल नहीं है. 1/ ऐसे लिखा हुआ है तो पोलिनोमियल नहीं है. 1/x-1, सो दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल. तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि ये पोलिनोमियल का पावर कितना हो गया, 2, डिग्री 2 हो गया, सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल. तो इसमें क्वाड्रेटिक या लिनियर का कुछ आंसरेबल है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. जैसे 1/x-1 है, 1 वाला टर्म पॉसिबल नहीं है पोलिनोमियल के लिए. सेम
सेम अंडर रूट कुछ आ रहा है, सो दैट इज अगेन नॉट अ पोलिनोमियल. ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं होता. ऐसे ही होता है कि 1 अपन आ रहा है, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. इसको हम सिंपल एक्सप्रेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस. That is 1 upon x minus 1 root x plus 2 1 upon x square plus 2x plus 3. That are expressions, that are not polynomials. Clear? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम. That is how to find value of polynomials for given value of x. For example, ये मैं example से समझाता हूँ आपको. For example, p of x is equals to 3x square plus 10x plus 7. इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है at x is equals to -3 एंड 1. तो आपको दोनों वैल्यू साथ में नहीं रखनी होती है, 1 by 1. फर्स्ट चेक फॉर -3, सो p ऑफ -3 आपको x की जगह पे क्या रखना है, -3, सो दैट इज -3 होल स्क्वायर. आपको ऐसा लिखना है, आप जिसके लिए चेक कर रहे हो यहाँ वो वैल्यू आपको x की जगह पे यहाँ पे रखनी है. इफ यू आर चेकिंग फॉर x इक्वल टू -3 देन यू टू प्लेस हियर x -3 इन प्लेस ऑफ x, दैट इज p ऑफ -3 दैट इज इक्वल्स टू 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 10 ऑफ -3 प्लस 7. Now solve it. 3 minus 3 square negative number and उसका square always it will be positive. 10 into -3 that is -30 plus 7 -3 plus 7 that is 4. अभी हम 1 के लिए चेक करते हैं, अलग अलग ही चेक करना है. So 3 of 1 square plus 10 of 1 7 3 plus 10 plus 7 7 plus 3 10 plus 10 20. क्लियर? अगर आपको यहाँ पे एडिशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कैसे एडिशन करोगे, पहले जो पॉजिटिव वाले टर्म है उसका एडिशन कर लो. 27 plus 7 27 plus 7 कितना होगा, 34, और उसमें से आप -30 कर दो तो वो हो गया 4. समझ में आ रहा है? So first you have to add all positive terms, then subtract negative term. Clear? एक और एग्जांपल करते हैं. सेकेंड, आपको p of x दिया हुआ है यहाँ पर 2x raised to 4 minus 3x cube plus 7x plus 5. आपको चेक करना है फॉर x is equals to -1 and +1. चलो दो वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं. p of -1 2 -1 raised to 4 minus 3 of -1 raised to 3 plus 7 of -1 plus 5. So -1 raised to 4 it is always +1, -1 raised to 3 that is -1, odd power always negative. 7 into -1 -7 plus 5 that is 2 minus minus plus 3 minus 7 plus 5. Now add this term. हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 plus 2 5 5 plus 5. पहले पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर देते. 3 plus 2 5 5 plus 5 10 minus 7. So आंसर इज 3. चलो हम चेक करते हैं p of 1. हर एक x की जगह पे हमने 1 रख दिया. Now that is 2 minus 3 plus 7 plus 5. Add positive values. 5 plus 2 7 plus 7 14 minus 3 that is 11. So that is your answer. Clear? तो कैसे हमें सॉल्व करना है वो समझ में आ गया. जो वैल्यू के लिए मैं चेक करने के लिए बोला है वो वैल्यू हमें इस पोलिनोमियल में रख देना है. सो दैट इज योर आंसर और वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल. सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x. तो आपको कुछ x की वैल्यू दी हुई है, उसके लिए ये पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है. जैसे क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -3 एंड 1. तो आपको x की जगह पे -3 यहाँ पे रखना है तो वैल्यू आ गया 4, फिर 1 रखना है तो वैल्यू आ गया 20. सो द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -3 इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज 20. सो दैट इज योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट. अभी ऐसा दिया हुआ है x plus 2 is factor of p of x, that is 3x cube
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8. x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट? फैक्टर है मीन्स इसका रूट है, मीन्स फैक्टर मीन्स रूट और जीरोस. ठीक है, फैक्टर भी बोल सकते हो, उसका रूट भी बोल सकते हो, उसका जीरोस भी बोल सकते हो. मीन्स ये वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0. x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल और नॉट? वी हैव टू एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. फर्स्ट x प्लस 2, तो हमें x प्लस 2 इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0 लेना है. तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू -2. ये 2 इस साइड चला जाएगा तो x इक्वल टू -2. तो हमें किसके लिए चेक करना है? -2 के लिए. x प्लस 2 था तो इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू आ गया -2. नाउ यू टू प्लेस दिस -2 हियर. सो यू टू चेक p ऑफ -2 जैसे हमने यहाँ पे किया था. -3 और 1 के लिए वैल्यू फाइंड की. सिमिलरली आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है फॉर -2, नॉट इक्वल टू 2. आपका x प्लस 2 है, दैट डजंट मीन कि आपको x इक्वल टू 2 यहाँ पे रख के वैल्यू फाइंड करनी है. आपको x प्लस 2 इक्वल टू पहले 0 रखना है, x इक्वल्स टू -2, देन यू टू चेक the value of polynomial for x equals to -2. So p of -2 that is equals to 3 of -2 cube plus 2 of -2 square plus 7 of -2 plus 8. यहाँ पे x की वैल्यू -2 रख दी. So that is 3 of 2 raised to 3 -8 plus 2 2 2 is 4 -2 का पावर इवन नंबर 2 तो इट इज पॉजिटिव. -2 का पावर ऑड नंबर सो इट इज नेगेटिव. 7 2 is 14, that is minus into plus, so -14 plus 8, -24 plus 8 -14 plus 8. Add simple positive values, 8 plus 8 16. Add simple negative values, 24 plus 14, 20 plus 10 30, 30 plus 8 38. Clear? Now subtract this two value. Subtract this two values, that is 38 minus 16. आपको ऐसा ही करना है सिंपल. 38 माइनस 16 2 और बड़ा कौन सा है 38, उसकी साइन नेगेटिव सो इट इज -22. दैट इज सिंपल. पहले आप दोनों पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करो. 8 प्लस 8 16. फिर दोनों नेगेटिव वैल्यू को ऐड करो. 14 प्लस 24 प्लस 14 दैट इज 38. 8 प्लस 8 प्लस 16 14 24 38. बट ये कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ गया. नाउ एक प्लस एक माइनस, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. 38 माइनस 16 22 आ गया. बिगर नंबर इज 38, इट्स साइन इज नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे माइनस रख देना है. क्लियर? सेम क्वेश्चन आपको बोला यहाँ पे एग्जामाइन x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p of x equal to same question 3x cube plus 2x square plus 7x plus 8. x plus 1 फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? x plus 1 equal to 0, then x equal to -1. -1 आपको यहाँ पे रखना है. p of -1 that is 3 of -1 cube, 2 of -1 square, 7 of -1 plus 8. तो हो गया 3 of -1 क्यूब. -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 3 -3, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2 2, -7 प्लस 8 प्लस 2 10, -7 -3 दोनों का एडिशन करना है. 7 प्लस 3 10. साइन कैसी है? नेगेटिव. 10 माइनस 10 0. तो अगर आंसर 0 आ रहा है दैट मीन्स x plus 1 is a factor of this polynomial, or we can say that it is a root of polynomial, or we can say that it is a 0 of the given polynomial. So we can say here that x plus 1 is a factor of the given polynomial, but here it is -22 is not equal to 0. That means x plus 2 is not a factor of given polynomial. So this statement is false, not correct, because it not equals to 0. And here x plus 1 is a factor of polynomial. This statement is correct because the p of -1 is equal to 0. That means x plus 1 is a factor of polynomial. अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि अगर सर यहाँ पे x plus 2 की जगह पे अगर x minus 2 होता तो क्या करते हैं हम? x minus 2 is a factor of polynomial चेक करना है तो x minus 2 equal to 0 रखो. x equal to क्या आ गया? 2. नाउ 2 आपको रखना है इसमें. 2 आप इसमें रखोगे
अगर 0 आ रहा है देन इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, अगर 0 नहीं आ रहा है देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। मीन सिंपल, आपको फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है, तो आपको जो फैक्टर दिया हुआ है, पुट दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू आ गई, देन सिंपल पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पोलिनोमियल। आप x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, दैट इज p ऑफ x। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है देन इट इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। लाइक दिस केस, इन द फर्स्ट x प्लस 2 वैल्यू रखा हमने -2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। लाइक हियर x प्लस 1, we put x equal to -1 into this polynomial and it gives 0, so x plus 1 is a factor of polynomial. Clear? Now next हम करते हैं factorization. Now next thing is factorization. अगर आपके पास, हमने एक्सपांशन किया था जो मैंने बेसिक वीडियोस मैथ्स के स्टार्टिंग में भेजे थे, आपको याद हो तो एक्सपेंशन में हमने क्या लर्न किया था, 2x - 1 x + 5 ऐसा है, इसको आपको एक्सपांड करना है। तो आप क्या करोगे, 2x इज मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट। अगर आपने प्रॉपरली वो वीडियो देखा है जिसको एक्सपेंशन नहीं आता था और आपने देखा है तो आपका अभी ठीक हो गया होगा। सो दैट इज 2x² + 5 × 2 = 10x, दैट इज -x + 5। तो हो गया 2x² + 10 - 1 दैट इज 9x + 5। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हो गया एक्सपांशन। एक्सपांशन हो गया। अभी फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दिस, फैक्टराइज 2x² + 9x + 5। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे। रिवर्स प्रोसेस, आपको क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है। एक्सपेंशन में हमें ये दिया हुआ था, उस पर से हम ये लाते थे। अभी हमें ये दिया हुआ है, उसको फैक्टराइज करके यहाँ पे जाना है। समझ में आ रहा है? तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक बेसिक मेथड सिंपल, आपको हर एक सम में फैक्टराइजेशन में ऐसे ही करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फैक्टराइज कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर इज 2, जिसकी डिग्री क्या होगी 2, सो दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फर्स्ट you have to multiply the coefficient of x², that is 2, and constant term. First step, multiply coefficient of x² and constant term. So coefficient of x² that is 2 and constant term that is 5. So 5 × 2 = 10. हो गया first step. Now राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1, 10 1 = 10, पहले बड़ा लिखना है फिर स्मॉल 1, 5 × 2 = 10, बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं। हाँ, नाउ चेक द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इस केस में पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे एडिशन करना है इन दोनों का। 10 + 1 दैट इज 11, 5 + 2 that is 7, 5 + 2 7, बराबर। यहाँ पे -1 अंदर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सो इट इज -5, हियर इट इज -5। ओके, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा -5, माई मिस्टेक। हियर 2x दैट इज मल्टीप्लाई बाई x + 5, -1 इज मल्टीप्लाई विथ x + 5, सो दैट इज 2x² + 5 × 2 = 10x -x -5, 10 - 1 that is 9x, and this is -5 as it is. Now we have to factorize this term, 2x² + 9x - 5. The first step is same, multiply the coefficient of x1 and constant term without consideration of sign. हमें यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करना है, जैसे यहाँ पे -5 आपको +5 लेना है और ये 2, 5 × 2 = 10 हो गया। नाउ फैक्टराइज 10, 10 1 = 10, 5 × 2 = 10, ये फैक्टराइज हो गया उसके। ओके, नाउ चेक द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। साइन क्या है, नेगेटिव। साइन नेगेटिव है तो आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। 10 - 1 क्या होता है, 9, 10 - 1 इज 9, 5 - 2 क्या होता है, 3। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, 9
सो 9 यहाँ पे आ रहा है। तो आपके फैक्टर्स कौन से हो गए? 10 एंड 1, 10 एंड 1। आपने साइन चेक कर लिया, कांस्टेंट टर्म का क्या है? नेगेटिव। सो फ्रॉम नेगेटिव साइन आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती देन यू टू ऐड दिस टू टर्म। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, अगर पॉजिटिव साइन है तो आपको एडिशन करना है। सिंपल। मीन्स कांस्टेंट साइन को आपको चेक करना है। इफ इट इज नेगेटिव देन सब्ट्रैक्ट, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन ऐड। सिंपल। तो यहाँ पे इस केस में हमारा नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या है? 10 - 1 9 एंड 5 - 2 3। हमारा मिडल टर्म देखो क्या है? 9। तो मुझे कौन सा सूट करेगा? 10 - 1 = 9। दैट इज योर आंसर। तो अभी इसको मुझे यहाँ पे सेट करना है। तो 2x², 10 1 और लास्ट में -5 था, ये 10x, सॉरी फिर से लिख रहा हूँ, 2x², 10x, 1x, -5। ओके। अभी आपको ये साइन देखनी है। कैसी है? +9। +9 मीन्स बिगर वन है जो उसको आपको प्लस देना है, स्मॉलर वन को माइनस। एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो आप, नेगेटिव वाला भी मैं बता रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म आपका है नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे तो एक टर्म आएगा आपका पॉजिटिव, सेकंड टर्म आएगा आपका नेगेटिव। वेन एवर यू स्प्लिट द मिडल टर्म you will get one term is positive, second term is negative. That depends on the sign of this middle term. समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे 2x² + 9x - 5 है, ये -5 मतलब कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव हो गया, तो फिक्स हो गया कि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा जो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे उसमें। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 2 10 प्लस, मेथड यही जाएगा, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 आ गया, चलो 10 को फैक्टराइज किया। अभी यहाँ पे नेगेटिव है साइन, कांस्टेंट टर्म का साइन चेक करो, नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव तो एडिशन करना है। नेगेटिव मीन्स मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, 10 - 1 9, मुझे 9 चाहिए, यस ये फिक्स हो गया, यही वैल्यू होगी मेरी, ये वैल्यू कुछ काम की नहीं। तो एक 10 हो गया और एक 1 हो गया। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, सो बिगर वन पॉजिटिव, स्मॉलर वन नेगेटिव, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। दो का पैर बना दो, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2 एंड x। 2 5 से 10 होता है तो 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और यहाँ से x का पावर 2 है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा? यहाँ से 2 निकल गया, एक x निकल गया, एक x बचेगा, और यहाँ से x निकल गया, 2 5 10, x + 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सेम ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, तो दोनों में से मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 यहाँ पे बचेगा x + 5। तो x + 5 एक ब्रैकेट हो गया आपका, वो कॉमन ले लो, x + 5 यहाँ से बचेगा आपका 2x और यहाँ से बचेगा -1। तो हो गया आपका फैक्टराइज, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक और सम करते हैं, सेम क्वेश्चन बट विथ सम अनदर साइन। 2x² -9x -5। अभी हमने जो किया था उसमें क्या था? 2x² + 9x - 5 ऐसा था। अभी यहाँ पे -9x - 5। चलो ट्राई करते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू कांस्टेंट टर्म, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, 5 2 10। 10 के फैक्टर्स 10 × 1 5 × 2। कैसी साइन है इसकी? नेगेटिव, तो मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ये सब आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, आपको ये माइंड में कैलकुलेट करना है या फिर आप रफ में कर सकते हो। 10 - 1 हो जाएगा 9, 5 - 2 हो जाएगा 3। मुझे कैसे चाहिए? 9, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ये कोई काम का नहीं है। 9 आ गया, ओके। 10 एंड 1 दो फैक्टर हो गए, 2x², फिर 10x, 1x एंड -5। अभी माइनस साइन, तो वो बिगर को देना है माइनस, अदर साइन एक प्लस। क्लियर? यहाँ से आपका कौन सा कॉमन आ जाएगा? इन दोनों की पैर बना दो, यहाँ से 2x कॉमन, सो x - 5 + 1 कॉमन, x - 5, क्योंकि मुझे दोनों ब्रैकेट सेम करना है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x - 5 एक बन गया आपका को फैक्टर, और एक हो गया ये 2x एंड ये +1, 2x + 1। तो इससे फैक्टराइज करते हैं। तो आपको एक थिंग ये याद रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म कैसा है? नेगेटिव,
तो मिडल टर्म को आप जब स्प्लिट करोगे एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। मिडल टर्म का जो साइन है, मिडल टर्म का जो साइन है वो किसको जाएगा, जो लार्ज टर्म है हमारा स्प्लिट करके जो आ रहा है उसको जाएगा। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, ये स्प्लिट हो गया, अभी मिडल टर्म का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, बिगर वन पॉजिटिव, अदर वन नेगेटिव। अगर यहाँ से मैंने स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो बिगर टर्म हो गया आपका नेगेटिव, स्मॉलर टर्म हो गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक में सिखा रहा हूँ, आपको आना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कभी भी पूछ सकते हो मुझे। नेक्स्ट हम करते हैं 6t² प्लस 7t माइनस 5। चलो अभी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। आप पहले वीडियो पॉज करो यहाँ पे, फिर खुद से ट्राई करके सॉल्व करो, फिर आप आगे देखना, आंसर वेरीफाई करना। 6 5 जा 30, ओके। 30 के फैक्टराइज करना है, 31 6 5 10 3, ऑल फैक्टर्स लिख दिया हमने। अभी कांस्टेंट टर्म का साइन चेक करना है, वो नेगेटिव है, 30 माइनस 1, सबका सब्ट्रैक्शन, 6 माइनस 5 10 माइनस 3 7, बाकी सब जो आ रहा है, मुझे यहाँ पे 7 चाहिए तो 7 आ गया, हाँ। तो ये सब का कुछ काम नहीं है, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। अभी यहाँ पे रख दो 6t², 7 की जगह मुझे क्या रखना है, 10 और 3, 10t एंड 3t, और ये माइनस 5 एज इट इज। कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो मिडल टर्म का साइन किसको जाएगा, बिगर वन, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, दो की पैर। फिर यहाँ से कॉमन आपको लेना है, 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10, दोनों में से 2 कॉमन, तो यहाँ पे t का पावर 2 t का पावर 1, तो t कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 बचेगा, एक t कॉमन आ गया, एक t रहेगा, 2 5 जा 10। अगर आपको ये कॉमन लेने के बाद पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या लिखना है, तो आपको सिंपल डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 6t² डिवाइड बाई 2t, 2 3 जा 6, और यहाँ से एक t निकल गया, एक t बचेगा, तो 3 आ गया और एक t आ गया। वैसे ही यहाँ पे 10t डिवाइडेड बाई 2t, ये t कट हो गया, 2 5 जा 5 बचा, सो प्लस 5। और आप रिवर्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 2 जा 6, t इंटू टी, t², t इंटू टी, 2t नहीं होता, t इंटू टी, दैट इज t², t इंटू टी, टी का पावर यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10t। वैसे यहाँ से -1 कॉमन आएगा, दोनों में से माइनस है तो माइनस कॉमन, 3t प्लस 5, एक हो गया 3t प्लस 5, और एक हो गया 2t माइनस 1, ये 2t और यहाँ से -1। क्लियर। और एक एग्जांपल करते हैं, फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतने एग्जांपल्स करा रहा हूँ आपको। 12x² माइनस x माइनस 1। अगेन pause the video and try to solve it by yourself. 12 into 1 12, 6 2 जा 12, नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब 1 आ गया, ओके। तो ये इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, मेरा फैक्टर हो गया ये वाला मिडल वन। तो 12x², फिर आप रख दो 4 and 3, 4 and 3, यहाँ पे x है तो x रखना है, अगर u है तो u रखना है, y है तो y रखना है, मतलब जो भी कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है वो रखना है, सॉरी जो भी टर्म दिया हुआ है वो आपको यूज़ करना है, -1। अभी बिगर का साइन, सॉरी मिडल टर्म का साइन -1, बिकॉज ये नेगेटिव है तो मिडल का साइन बिगर 1 को जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। आप रिवर्स भी चेक कर सकते हो, -4 + 3 -1 आ रहा है, यस, सो इट इज करेक्ट। नाउ स्प्लिट कर दो, 4x कॉमन, 3x - 1, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम ब्रैकेट आ गया, 3x - 1, और कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है, एक 3x - 1 हो गया, और ये 4x और ये +1 हो गया, दैट इज योर आंसर, फैक्टराइज हो गया। क्लियर। वन मोर, 3 - 4x - 7x²। हमारे पास कैसा होना चाहिए, 7x² वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x² वाला टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए।
तो हम इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो माइनस, तो 7x² पॉजिटिव हो गया। पहले मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया -3, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अभी मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज करने से आपका साइन चेंज नहीं होगा। कई स्टूडेंट साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप इक्वल टू, अभी वो जाने दो, आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज करोगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो ध्यान रखना। सिर्फ अगर कुछ माइनस बार ले रहे हो तो ये आपका अंदर साइन चेंज होगा। नाउ इसको आपको सिंपल फैक्टराइज करना है। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। 7 3 जा 21 माइनस, सो सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 3 4 आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरे फैक्टर हो गए, 7x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 3, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, इसमें से 7x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1 और एक हो गया 7x माइनस 3। अब अगर आपको ये माइनस साइन जो है अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो इधर आप इस ब्रैकेट को कर सकते हो और इस ब्रैकेट को, किसी भी एक ही ब्रैकेट को माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करनी है, बिकॉज दिस टू थिंग्स आर इन मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन। तो सबके साथ वो नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही ब्रैकेट के साथ जाएगा। तो आपका x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा और मैं माइनस इसके साथ ले रहा हूँ तो -7x हो जाएगा और ये 3 प्लस हो जाएगा। अगर आप माइनस इसके साथ ले रहे हो तो आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है -x - 1 7x माइनस 3। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो। आप माइनस साइन बट एक ही ब्रैकेट के साथ लेना है। जैसे आपका ऐसा है 2 × 3 और आगे माइनस है, तो आप इधर -2 लिखो या -3 लिखो, या फिर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है जैसे -2 × 3, तो आप क्या करते हो, माइनस कॉमन लेके 2 × 3 -6 आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि -2 भी हो गया -3 भी हो गया, तो -2 -3 माइनस माइनस तो +6 हो जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में माइनस सिर्फ एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने किया, ये जो नेगेटिव साइन है किसी एक ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर इस ब्रैकेट के साथ और इस ब्रैकेट के साथ, आप किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम करते हैं हम। अभी तक हमने किया कि कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी क्या था, नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, सिर्फ मिडल टर्म माइनस था, यहाँ पे प्लस था, वो चेंज हो रहा था। अभी हम करते हैं कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव वाले सम करते हैं। जैसे दिया हुआ है 5x² प्लस 11x प्लस 6। चलो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो गया, मेथड सेम, 6 5 जा 30, 30 को फैक्टराइज करना है, पहले बड़ी वैल्यू फिर स्मॉलर वन। अभी लास्ट टर्म कौन सा है, 6। कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव साइन हो तो हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। चेक द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इफ नेगेटिव देन सब्ट्रैक्शन, इफ पॉजिटिव देन एडिशन। मीन्स यहाँ पे दोनों की, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। 30 + 1 31, ये 11 और ये 13, मुझे क्या चाहिए 11, तो ये मेरा फिक्स हो गया 6 5, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। चलो अभी यहाँ पे लिखते हैं 5x² 6x 5x + 6। अभी जब आपका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आपको मिडिल टर्म से आप जब स्प्लिट करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे स्प्लिट किया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी स्प्लिट किया नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल वन का जो साइन है वो हम बिगर नंबर को दे रहे हैं, स्मॉलर वन, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तब आप जब
मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे, मिडल टर्म का स्प्लिट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 6 और 5, दोनों का साइन क्या आएगा आपका सेम। वो साइन कौन सा होगा, मिडल टर्म का जो साइन है वही रहेगा। जैसे यहाँ पे मिडल टर्म का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव। इफ इट इज नेगेटिव देन बोथ आर नेगेटिव। अभी पॉजिटिव के लिए कर रहा है तो पॉजिटिव का समझते हैं। यहाँ पे +11 है तो दोनों को मैंने प्लस साइन दे दिया, दो दो की पैर। हाँ, अभी किसी को सवाल हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि 5x² सर मैंने ऐसा लिखा 5x + 6x + 6, तो मेरा आंसर अलग आ सकता है। नहीं, आप ऐसा लिखो या ऐसा, आंसर आपका सेम आएगा। दोनों के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ से मेरा कॉमन आएगा, इसके लिए मैं पहले सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मेरा कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 5x + 6। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, +1, 5x + 6, तो एक हो गया 5x + 6 और एक हो गया x + 1, साइन के साथ लेना है। चलो अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं, सेकेंड वन। इन दोनों का पैर बना लो, इसमें से 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 1, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 1, तो एक हो गया x + 1 और एक हो गया 5x + 6। तो आप अंदर ऑर्डर कोई भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आप ऐसा ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे किसी ने यहाँ पे लिखा 12x² + 3x - 4x - 1, तो इसका भी आंसर ये सेम ही आएगा। आप ट्राई करके देख लेना, इन दोनों का पैर, इन दोनों का पैर। यहाँ से आपका 3x कॉमन आएगा, यहाँ से आपका -1 कॉमन आएगा। क्लियर? तो आपका आंसर सेम हो जाएगा, 3x - 1 4x + 1। मीन्स आप अंदर ऑर्डर, मिडल टर्म स्प्लिट करके ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट साइन इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अगर यही सम सेम है 5x² बट -11x है + 6, यहाँ पे क्या था +11x + 6, यहाँ पे -11 + 6। सेम मेथड, 6 5 = 30, उसको स्प्लिट करना है, एडिशन प्लस करना है, वो आ गया 11। चलो सही है, 11 तो चाहिए मुझे, 11 आ गया एडिशन से। अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 6x, 6 और 5, 5x + 6। मिडल टर्म का साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो दोनों को क्या देना है मुझे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? मीन्स अगर आपका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो मिडल टर्म आप जब स्प्लिट करोगे तो सेम साइन दोनों को देना है। सेम साइन मीन्स अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है देन पॉजिटिव, अगर मिडल टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मिडल टर्म पॉजिटिव था तो दोनों का साइन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे मिडल टर्म नेगेटिव है तो दोनों का साइन हो गया नेगेटिव। बट वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट टर्म की साइन ऊपर। कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तभी एक केस होगा। दो केस आपको याद रखना है। तो यहाँ से कॉमन आएगा x, 5x - 6, यहाँ से -1, 5x - 6। -1 क्यों कॉमन लिया, बिकॉज यहाँ पे मुझे +5x चाहिए और यहाँ पे -6 चाहिए। जैसे ये ब्रैकेट में है 5x - 6, तो मुझे यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये -5x का +5x हो जाएगा, +6 का यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो 5x - 6 दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। तो एक 5x - 6 हो गया और एक हो गया x - 1, हो गया फैक्टराइज। क्लियर? एक और मैं कराता हूँ आपको, 6y² - 17y + 12। चलो मल्टीप्लाई करो, 72, एडिशन करना है, 17 चाहिए। चलो आ गया, ये फैक्टर हो गए। पॉज करके आप करना, ये सब ट्राई करना खुद से। दोनों की साइन सिमिलर, दो दो की पैर बना के कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2y, 3y - 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। -3 क्यों कॉमन लिया, बिकॉज मुझे +3y चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं +3 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ 3 3 = 9 होता है, 3y, और ये माइनस अंदर आएगा। बट मुझे +3y चाहिए, इसलिए मुझे -3 कॉमन लेना है, तो आपका अंदर +3y हो जाएगा और 3 4 = 12 होकर ये -4 हो जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो एक ब्रैकेट हो गया आपका 3y - 4 और एक हो गया 2y - 3। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कॉमन कौन सा लेना है, बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट सेम करने के लिए मुझे ऐसा कुछ कॉमन लेना पड़ेगा जैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे -4 है, तो यहाँ से अगर आपने -3 कॉमन नहीं लिया होता, +3 होता, तो यहाँ पे आपका क्या होता, +4। तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते, दैट्स वाई हैव टू टेक हियर -3 कॉमन।
तो अभी आपका यहाँ पे -4 आएगा। क्लियर हो गया आंसर। चलो एक लास्ट सम अभी मैं कराता हूँ आपको। (18bx² + 18bx - 20b। अभी इसमें क्या है आपका, b हर एक जगह पे है, ठीक है। तो b मैंने पहले से कॉमन ले लिया और ईच नंबर इज इवन नंबर, तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 कॉमन आ गया। मतलब जो भी पहले कॉमन आ रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले उसको कॉमन लेना है। अगर 3 कॉमन आ रहा है इसमें से तो 3 कॉमन ले लो, 4 आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, जो भी नंबर कॉमन आ रहा है पहले आपको वो कॉमन निकालना है। तो 2 9 18, b तो निकल गया x², 2 9 18, b निकल गया x, 2 10 20, b निकल गया। तो अभी ये सिंपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको फैक्टराइज करना है, 2b एज इट इज रहेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 10 9 90, 90 का हो जाएगा आपका 15 6 90, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 15 - 6 हो जाएगा 9, तो 9x² + 15x - 6x - 10। जब आप ये सारी कैलकुलेशन माइंड में कर पाओ तब जाके आपको फैक्टराइज आता है, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x + 5 - 2 3x + 5। सब फटाफट होना चाहिए, इतनी ग्रिप फैक्टराइजेशन पे होनी चाहिए, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। दैट इज योर आंसर। क्लियर। इसका मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा आपको फैक्टराइजेशन के लिए, और जो भी हमने अभी लर्न किया, पोलिनोमियल है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, लीनियर क्वाड्रेटिक कैसा पोलिनोमियल है वो आइडेंटिफाई करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो स्टेटमेंट एग्जामाइन करना है जैसे उसका फैक्टर है कि नहीं है, वो सब का मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके लिखना है। ठीक है। Thank you guys, keep liking my videos and kindly subscribe my YouTube channel and also share with your friends. Thank you, bye bye.